यहाँ से फिर कच्चा रास्ता शुरू हो जाता है, तकरीबन कोई आधा किलोमीटर है या उससे भी कम है। पर ये गाड़ियाँ खड़ी हैं तो आपको वो फैसिलिटेट कर सकते हैं। जितने भी फैमिलीज आते हैं यहाँ पर रुक जाते हैं और यहाँ से वो फिर जो किराए की गाड़ी है जीपें वगैरह, यहाँ से वो जीप पकड़ के, यहाँ से तकरीबन 10 मिनट का रास्ता है, लेकिन मसला ये है कि बस रास्ता ख़राब है। बस ये तकरीबन आधा किलोमीटर या उससे भी कम, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। सयाहों को काफ़ी मुश्किल पेश आती है यहाँ पर, तो अगर ये ठीक हो जाए तो बेहतरीन हो जाएगा। बाकी सड़क ठीक है और जितने भी सयाह आते हैं तो यहाँ हुकूमत से यही मुतालिबा करते हैं कि इसको ठीक किया जाए। रोड का जो स्ट्रक्चर है वो मौजूद है, बस ब्लैक टॉपिंग अगर हो जाए या कोई मतलब और तरीक़ा हो जाए तो ये बेहतर हो जाएगा। बाकी वैसे छोटे बड़े गाड़ी आ जा सकती है, लेकिन यह है कि बहुत मुश्किल से सवारियाँ उतारनी पड़ती है बाज़ जगहों पे ना, तो एक दो जगह ऐसी है, चढ़ाई वगैरह भी है। कैंपिंग कोड के लिए रास्ता कैंपिंग पोर्ट की तरफ हम जा रहे गबिंजबा। बाकी आप देख सकते हैं आजकल रोड बेहतरीन है इसका, और सारे ये एरिया ये ऐसा है कि सैलाब से ये मुतासिर नहीं हुआ है। ये मैं डाले के पीछे बैठा हूँ, सामने अगर आप देखें तो कैंपिंग पोर्ट्स और डाला, ये पीछे वाला एरिया पूरा बेहतरीन। ये गबिंजबा के दूसरे साइड पे जिस तरह ये भी होटल वगैरह बन रहे हैं। कैंपिंग पोर्ट हम पहुंच गए। गर्मियों में इसका अपना मज़ा होता है और सर्दियों में बर्फ़। तो आपको दिखाते हैं इस सर्दियों में ये नज़ारा। तो गबिंजबा में इस वक्त ये होटल खुला है, आप यहाँ क़याम भी कर सकते हैं और खाने पीने की चीज़ें भी दस्तयाब है। तो थोड़ा सा मैं आपको दिखा लेता हूँ कि आप देखें। ये नियाग्रा रात हमने यहाँ पर क़याम किया और इसको कहते हैं लाल कू होटल एंड रेस्टोरेंट। तो इनके पास है कोई 10-12 कमरे हैं इधर, तो खाने पीने की चीज़ें और सब, लेकिन व्यू के लिहाज से ये थोड़ा सा अच्छा है। इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर इरफान अशरफ मौजूद है। गबिंजबा आए हैं, अभी हम
رات کو پہنچے تھے لیکن دن کے نظارے کچھ اور ہے. کیا کہیں گے سر اس حوالے سے؟ واقعی گبین جبہ بہت خوبصورت علاقہ ہے. میں 2 سال کے بعد سوات دوبارہ آ رہا ہوں. اس سے پہلے میں سوات تقریباً ہر سال آتا رہا ہوں. مختلف علاقے دیکھ چکا ہوں. یہ گبین جبہ ابھی تک میں نہیں دیکھ چکا تھا اور اس کی کافی تعریفیں سنی تھی. یہاں پہ فضل حق کالج ہے, اس کا کیمپس ہے, سمر کیمپس ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا یہاں پہ برف باری کے قصے ہم نے سنے تھے. یہ بھی سنا تھا کہ یہ کافی ہائٹ پہ علاقہ ہے, اس لیے یہاں برف کالام میں پگھل بھی جائے تو یہاں پہ رہتی ہے. اس کی برف پوش پہاڑیاں کافی جو ہے نا دلکش ہیں. اس کے ساتھ لوگ بڑے محنتی ہیں. میں جب دیکھتا ہوں کہ پہاڑوں کے اوپر گھر ہیں اور ان گھروں میں سردیوں میں بھی لوگ رہتے ہیں تو میں یہاں سردی سے چھسر جاتا ہوں. لیکن وہ لوگ وہاں پہ نہ صرف گزارا کرتے ہیں بلکہ ایک سیلف سسٹینڈ لائف گزارتے ہیں. مال مویشی پال کر ان کی بنیاد پر وہ جو ہے نا وہاں پہ مہینوں میں ایک دفعہ اترتے ہیں اور پھر سامان لے کے ادھر رہتے ہیں. تو میں سب کو یہ ضرور کہوں گا کہ کبھی بھی آپ سوات آئیں تو گبین جبہ آنا نہ بھولیے گا. اور اس کی خاصیت ایک یہ بھی ہے کہ یہ جو میرا دوست ہے شرین زادہ صاحب, یہ اس کو کریڈٹ جاتا ہے کہ یہ علاقہ اس نے دریافت کیا آج سے تقریباً جو ہے نا 10-15 سال پہلے. دریافت سے میری مراد یہ ہے کہ اس نے جو ویڈیوز بنائے سوات ٹورزم پہ وہ جو ہے نا کافی لوگوں نے لائکس کیے اور ان کو سرکولیٹ کیا اور اس کی بنیاد پہ گبین جبہ جو ہے نا ہمارے نوٹس میں بھی آیا اور بہت سے اور لوگوں کی نوٹس میں بھی آیا. تھینک یو سو مچ سر. گبین جبہ لالکو کز لالکو بہت ہی خوبصورت ویو. گبین جبہ ٹاپ تازہ ترین صورتحال یہ ہے. یہ ٹریک بنا دیا ہے لیکن ٹریک میں ریت اور بجری زیادہ اور سیمنٹ کم تو یہ خراب ہو گیا ہے. 1 سال بھی نہیں ہوا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں شرین زادہ اور اس وقت میں گبین جبہ میں موجود ہوں. یہ سوات کا سیاحتی مقام ہے اور نیا سیاحتی مقام اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی اتنا یہ زیادہ مطلب مشہور نہیں ہے. لیکن جتنی بھی سیاح سوات آتے ہیں ملم جبہ, کالام, بحرین, مدین, تو وہ ضرور یہاں کا بھی رخ کرتے ہیں. لیکن سیلاب کی وجہ سے اس کی جو سٹرکچر ہے سڑک کا وہ تھوڑا سا خراب ہو گیا ہے. لیکن بہرحال آپ اپنی گاڑی میں آ سکتے ہیں. یہاں لوکل جیپ بھی دستیاب ہے اور آپ پیدل بھی آ سکتے ہیں. یہاں بیس کیمپ تک آپ اپنی گاڑی میں یا جیپ میں پہنچ سکتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ پیدل ٹریک ہے تو یہ تقریباً 1 کلومیٹر ہے اور 35 منٹ میں آپ یہ طے کر سکتے ہیں آہستہ آہستہ اگر آپ آتے ہیں. اور اگر آپ سپورٹس مین ہے یا آپ ٹریکر ہے تو پھر آپ زیادہ سے زیادہ 15 منٹ میں آپ آسانی کے ساتھ یہاں پہنچ سکتے ہیں. تو میرے ساتھ رہے. آج میں نے آپ کو بتانا ہے, دکھانا ہے کہ یہ جو گرمیاں شروع ہونے والی ہے, رمضان سے پہلے کیا صورتحال ہے. اگر آپ عید کے بعد آتے ہیں تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, دکھانا چاہتا ہوں کہ گبین جبہ کی صورتحال کیا ہے. ساتھ رہے. تو ناظرین, اس وقت گبین جبہ ہریالی کا سیزن ابھی شروع نہیں ہے. مئی کے یعنی اپریل کے بعد یہاں پر گرینری آنا شروع ہو جائے گی اور یہ مطلب لوور گبین جبہ ہے اور سامنے اگر آپ دیکھیں یہ جو ٹاپ ہے اس کا وہ اپر گبین جبہ ہے. دونوں گبین جبوں میں یہ فرق ہے کہ وہاں پر بھی دشتیں ہے, ہریالی ہے, کھلے میدان ہے ہر طرف. لیکن جو یہاں تک آپ پہنچ جاتے ہیں تو یہ بھی بہت ہے کیونکہ یہ 1 کلومیٹر راستہ ہے اور اس کو آپ جو طے کرتے ہیں اگر آپ عادی ہے تو ٹھیک ہے, اگر آپ عادی نہیں ہے تو پھر آپ کے لیے مشکل ہو جاتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یہاں پر مارچ کے مہینے میں بھی, یہ ابھی مارچ کا اینڈ جا رہا ہے لیکن آپ اگر دیکھیں تو برف ابھی بھی موجود ہے اور جتنا آپ اوپر جائیں گے اتنا ہی زیادہ برف. لیکن
अप्रैल के एंड में यहाँ पर हरियाली आना शुरू हो जाएगी। होटलें यहाँ पर जो छोटे केबिन्स वगैरह होटल्स है वो बंद है। रिपतुल्लाह और अगज़ई हमारे साथ मौजूद है, खैबर पख्तूनख्वा के नामवर सहाफ़ी है, सीनियर सहाफ़ी है। हम आपको वेलकम करते हैं, आप स्वात आए हैं और ख़ास कर गबीन जब आप पहली दफ़ा आए तो क्या तब्दीली आपको लग रही है यहाँ पर, कैसा आप पा रहे हैं कि गबीन जबा कैसा है? एक तो शरीनज़ादा साहब, मैं बहुत खुश हुआ कि स्वात के अंदर एक जो कालाम वैली जो है ना, एक बहुत बड़ा टूरिस्ट मरकज़ है, वो हम कई मरतबा देख चुके हैं, वहाँ पे गए हैं, स्टे भी कर चुके हैं। तो उसी तरह का एक बड़ा मरकज़ गबीन जबा जो है वो यानी उसी तरह के वहाँ ये सारे हालात यहाँ मौजूद हैं कि बर्फ़बारी भी है, पहाड़ भी है, एक्सेसिबल भी है, होटल भी अभी जो है ना बन रहे हैं। तो बड़ी खुशी की बात है कि एक और जो है ना दूसरी जगह वो यहाँ पे एक ऐसा समझ ले कि एक्सप्लोर हो गई हैं। और ये भी जो है ना मतलब आप ही की वजह से है कि आप यानी पहला जो शुरू में इस इलाके को अगर किसी मीडिया के बंदे ने एक्सप्लोर किया है तो वो शरीनज़ादा, ये आपको शुक्रिया भी अदा करते हैं हम। थैंक यू। तो अब ये है कि अब यहाँ पे जो हालिया सैलाब की वजह से जो है ना ये बड़ी तबाही हुई है। रोड जो है तकरीबन एक जगह पे बिल्कुल पानी में बह गया है, हालांकि उससे पहले ये बिल्कुल टॉप तक जो है बिल्कुल कारपेट रोड थी। बिल्कुल। तो अब उस पर इतना ज़्यादा जो है ना पहले से स्ट्रक्चर बनी हुई है, यानी ज़्यादा काम की ज़रूरत नहीं है। वो अगर थोड़ा सा हुकूमत इस पर मतलब तवज्जो दे, ये जो अभी सीज़न आ रहा है और इसमें जो यहाँ के मकामी लोग हैं उनके जो होटल है वो भी उसमें तबाह हुए हैं, तो वो बेचारे जो है ना उनको बड़ा नुकसान हुआ है। अगर ये रोड बन जाती है दोबारा से, जब यहाँ पे लोगों को आना शुरू हो जाएगा तो उनका जो है ना वो फिर किसी न किसी तौर पे जो है ना वो उनको जो है ना वो फैसिलिटेट हो जाएंगे। बिल्कुल। तो ये जो है ना बड़ी बेहतरीन जगह है। इसमें जो है ना ये आप देखें कि मार्च का एंड है, लेकिन अभी भी यहाँ पे न ये कि यहाँ की जो पहाड़ है उनकी चोटियों पे वो बर्फ़ से ढकी हुई है, बल्कि अभी थोड़ी देर पहले यहाँ एक इलाके में हमने देखा कि वो जो है ना पहाड़ की चोटी पर बिल्कुल ताज़ा बर्फ़ पड़ी है। तो ये यानी मतलब मौसम के लिहाज से बहुत खूबसूरत, तकरीबन 8,000 से ज़्यादा इसकी बुलंदी है। तो ये स्वात है, जन्नत है, खूबसूरती है, एंजॉय करें और बस अल्लाह करे कि इसकी ये जो खूबसूरती है इसी तरह बरकरार रहे। और ये यहाँ पे एक और चीज़ जो हमने देखी कि ये टूरिस्ट स्पॉट्स पे हम जब लोग आते हैं तो अपने साथ वो गंदगी जो है ना ये लाते हैं। तो ये गंदगी तो इसकी जो खूबसूरती है वो इस वजह से है कि ये जो है ना गंदगी से बची हुई इलाके है। अगर यहाँ पे ये गंदगी आएगी तो ये जो इसकी नेचुरल जो कुदरती खूबसूरती है ये बहुत ख़राब हो जाएगी। यहाँ पे यानी ये आवाम का फ़र्ज़ है कि वो ये गंदगी जो है ना अपने साथ वो शापर में डालें और फिर कहीं जाके डस्टबिन में डालें। तो उससे ये जो इंतज़ामिया है आप उसका भी एक हेल्प कर रहे हैं और ख़ुद आप एक ज़िम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं। और ये जो इसकी यहाँ पे वाइल्ड बिल्कुल जो खूबसूरती है वो इसी तरह फिर बरकरार रखने का उसका बड़ा जो है ना ये फिर मुमकिन है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। ये अगर आप देखें तो ये सारा रैपर्स वगैरह बोतल और ये चीज़ें पड़ी हैं। तो ये कितना खूबसूरत इलाका, लेकिन यहाँ पर गंदगी, ये डस्टबिन भी है लेकिन इसको इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। हर तरफ हम अगर देखें तो ये रैपर्स बोतल वगैरह जो है ना ये पड़े हैं। तो हम इतने बाशऊर क्यों नहीं हो रहे कि हम अपने घर को तो गंदा नहीं करते लेकिन यहाँ आकर कुदरती माहौल को छेड़ते हैं। वो बताते हैं ना कि अगर आपने पहाड़ी इलाकों में जाना है और यहाँ पर आपने कुदरती मनाजिर देखना है तो आप पहाड़ों पर यानी इन इलाकों में न कोई चीज़ लेके जाए न वहाँ से कोई चीज़ लेके आए। तो यहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी है वो बरकरार जो है ना वो रहेगी और आप इंजॉय कर सकेंगे। आप देखें तो ये ट्रैक बन रहा है, यानी आप अगर गबीन जब आते हैं तो आप बेस कैंप से 1 किलोमीटर ये ट्रैक बन रहा है। तो इस ट्रैक का ये फ़ायदा होगा कि एक तो आपको वर्जिश करने का मौका मिलेगा और दूसरा ये है कि ये नेचुरल ब्यूटी जो है ना वो बरकरार रह जाएगी। और हरियाली इतनी गर्मियों में मई जून जुलाई अगस्त तक सितंबर तक अगर आप यहाँ आते हैं तो छोटे छोटे पुल और ये इसकी जो अपना ग्रीनरी है, ग्रास है, वो इसका तो बहुत ही ज़्यादा शानदार है। ये बोल सर खबर को याओ यानी घोड़े बिल्कुल तैयार है। ये आपको आराम से जो है ना ऊपर टॉप तक 500 रुपये में पहुंचा देगी। और इसमें ये है कि आप घोड़े पर भी जा सकते हैं, अगर आप पैदल नहीं जा सकते तो आप घोड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 500 रुपये 1000 रुपये लेते हैं और आप इसमें जाएं।